पूरी हो गई सरस्वती नदी की तलाश। मनरेगा के तहत नदी खोजी जा रही है सर, जो हजारों साल पहले धरती से गुम हो गई थी। In the sleepy village of Mughalwali in Yamuna Nagar, Haryana, the missing sister of Ganga and Yamuna has been found. The mighty Saraswati only comes to life during the monsoon. It could very well be just groundwater. Been able to find Saraswati. Yes ma'am, definitely. ना आपको कैसे इतने कॉन्फिडेंस से मालूम कि जो मिला है वो सरस्वती ही है सर? 50 crore rupees has been dedicated by the Haryana government. इतने सालों से जो प्रयत्न हो रहे थे उसके लिए अभी खुदाई का काम शुरू किया गया। खारे भूजल वाले इस इलाके में इतना मीठा पानी कहां से आया? सरस्वती नदी किसी चमत्कार से कम नहीं है। Is River Saraswati truly the mother of Indian civilization, or was it always a river in our imagination? What is the truth about River Saraswati? Searching Saraswati, जहाँ रहस्य गढ़ा है, सत्य भी वहीं गढ़ा है। Saraswati river is a timeless river. The origin of the Saraswati river is somewhere in the glaciated Himalayas. हिमालय के ग्लेशियरों से होते हुए उत्तराखंड से होकर, हरियाणा से होकर, राजस्थान से होकर गुजरात में अरब सागर में समुद्र में मिलती थी। जो ऋग्वेदिक जो साहित्य है उसमें मिलते हैं कि ये पर्वतों को तोड़ करके विशाल रूप में, अपने विशाल रूप में बह करके और समुद्र में विलीन हो रही है। But there is another theory about the origin of the river Saraswati. So before the Himalayas came into being, perhaps at that point of time, some streams that originated in the Aravalli group of mountains could also have been a precursor or the oldest Saraswati, which we are yet to find out, because this river transcends time, it transcends our knowledge, it transcends whatsoever we know about the river system that is existing at this moment in northern India. The more we search for Ma Saraswati, the more there is to find. Even researchers do not know how much more there is to know. Let's start right at the beginning of our civilization. Thousands of years ago, there was a river so mighty and enriching that people settled along its banks. Along with other water systems, it became their source of life. By providing food, water, and safety, the river empowered people to think beyond survival. People began to think, imagine, and communicate. With this power of words and wisdom, ancient Indian civilization was born. As our civilization developed language to share knowledge, scriptures were written along the banks of this river. In our scriptures, we honored the river as a goddess. We named her Ma Saraswati, the mother of words and wisdom. Ambitame Devitame Naditame Saraswati, वाक और विवेक की जननी माँ सरस्वती। ब्रह्मा की पुत्री माना जाता है सरस्वती को, और सरस्वती से ही सारी प्रज्ञाओं की उत्पत्ति हुई। सारे जो विस्डम्स हैं ये सरस्वती से ही निकले। हमारे जो भारत की जो सभ्यता है उसको हम दो चरणों में बांट सकते हैं। पहली है सारस्वत सभ्यता, दूसरी है गंगा यमुना की सभ्यता, और जिसको कि हम अपना एक सर्वश्रेष्ठ काल मानते हैं, वैदिक काल। वेदों ने ही तो भारत को बाहर पहचान दी ना। वैदिक काल में जो भी हमारे भारत में जो हमारे दार्शनिक या चिंतन या धर्म या सांस्कृतिक गतिविधियां थी वो सरस्वती के तट पर ही सीमित थी। वेदों की रचना भी, वेदों की उत्पत्ति भी, वेदों का प्राकट्य भी इसी सरस्वती की तट पर हुआ। तो उससे संबंधित भी यहाँ कलायत है, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। पेहुआ में
मंदिर है माता सरस्वती का, जिसे पृथ्वीदक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन घाट भी है, सरस्वती आज जल के रूप में वहाँ विद्यमान भी है। उत्तर भारत के सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध और इस प्रकार के कर्म करते हैं। तो यहाँ से लेकर के और गुजरात तक हजारों की संख्या में तीर्थ स्थल हैं। आज भारतीय संस्कृति में सरस्वती वंदना माँ के रूप में की जाती है, लेकिन भारत की धरा एवं स्मृति से सरस्वती नदी आज लुप्त हो चुकी है। टुडे माँ सरस्वती flows only in prayers and mythical stories. The mighty river that gave birth to one of the oldest and most flourishing civilizations in the world is now lost and sadly forgotten. The disappearance also is sequential. At Allahabad, it got dismembered mainly because of the tectonic movements that took place, and then there was this channel which was going into the Gulf of Khambat. Gradually again this channel became insignificant and its channel was termed as the Drishadwati stream, and this main channel Drishadwati, which was original Saraswati at one point of time, became a tributary of the new Saraswati, which during the Vedic period it flowed from glaciated Himalayas again to Rajasthan. It flowed into Pakistan, and then near the Indus Delta it used to fall in the Arabian Sea. सरस्वती विलुप्त क्यों हुई? तो वास्तव में जब जल नहीं होता है और ज़मीन है, ज़मीन की हर क्षेत्र में आवश्यकता रहती है, तो लोगों ने खेती करते करते उसको समतल करके और वहाँ पर अपना उपज लेना प्रारंभ कर लिया। परंतु अब रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उन स्थानों को खाली कराया गया है और वहाँ जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ पर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को कठिनाई ना हो। ये दृश्य उसी के हैं। ब्रिटिश काल में अपर्याप्त दस्तावेजीकरण के कारण सैकड़ों सालों से सरस्वती को एक काल्पनिक नदी कहा जा रहा है। आज भी हमारी सभ्यता की जननी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही एक सवाल और उठता है, जो नदी पिछले हजारों सालों से सूख चुकी है, वो आज भी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? About the utility of research on the Saraswati river system, so the first and foremost is that it establishes the cultural antiquity of Indian civilization. The research that is being carried out in this center of excellence, what we find is that this river was flowing continuously for the past 20 to 30,000 years in Haryana at least. This continuity went on till the early 15th century. There has been a continuous civilized culture in Haryana. By this finding, Indian civilization, or I would say that the people of Haryana represent the oldest living civilized society in the entire world. That is the historical importance of this river system. डॉक्टर A.R. चौधरी के मुताबिक सरस्वती शोध कार्य से डीप एक्विफर आइडेंटिफिकेशन में भी मदद हो रही है। ONGC ने प्रयास करके डीप बोरवेल किए थे। तो ये प्रोफेसर राव हैं और इनके ही नेतृत्व में उत्खनन हुआ। राजस्थान के जैसलमेर का क्षेत्र है, वो तेल की खोज में ONGC डीप बोरवेल करती है और उन्होंने किया। वहाँ से तेल निकला नहीं निकला अलग बात है, परंतु उन्होंने सोचा कि कुछ समाज सेवा का कार्य करें, तो उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड से ये देखा कि सरस्वती कहाँ से बहती थी और उसकी मैपिंग की उन्होंने। बड़ा ताजुब हुआ जब वहाँ से पीने योग्य जल की उत्पत्ति हुई। जहाँ पर पीने योग्य जल नहीं है वहाँ अगर ट्यूबवेल से एक अच्छी मात्रा में जल निकला तो सब लोग प्रसन्नचित हो गए और उसका नाम ही प्रोजेक्ट सरस्वती के नाम से रखा। But world over, placer mineral deposits are of great economic significance. Even the minerals are also present on the paleo channels of the Saraswati river. This is how they flowed. This is the broad shelf that you are seeing. The sediments have been deposited mainly by the Saraswati river. And as also you have here the Gulf of Cambay, you have oil fields also, lots of oil fields are there. So these oil fields somewhere or the other are also somewhere linked to the Saraswati river system. And GSI is already working on it, and maybe in a few years we would be mining those minerals.
1990 के दशक में सरस्वती शोध कार्य की एक नई लहर उठी, जिसमें सरस्वती की खोज में वेदों और अन्य ग्रंथों को फिर से पढ़ा गया। आज गंगा को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन प्राचीन वाङ्मय में सरस्वती के बारे में ही ज़्यादा उल्लेख प्राप्त होता है। और ऋग्वेद से सरस्वती शब्द का जो है उद्गम या प्रारंभिक में प्राप्त होता है, लेकिन जो ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं वो एक तो ऐतरेय आरण्यक में सबसे पहली बार बहुत विशेष रूप से जो बड़ा उल्लेख मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और साथ में मनुस्मृति में इसके बारे में उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ पर ये कहा हुआ है कि सरस्वती और दृशतवती ये दो देव नदी हैं। और जहाँ जहाँ से सरस्वती नदी प्रवाहमान होती थी प्राचीन काल में, उन सब स्थानों को जो राजस्व रिकॉर्ड है, यानी जो जिसे हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, उससे खोजबीन की गई। तो आज भी भारत सरकार के रिकॉर्ड के अंदर वह सब चीज़ें उपलब्ध हैं कि सरस्वती नदी का मार्ग कहाँ कहाँ से था और है कि नहीं है। इसके प्रमाण हेतु सैटेलाइट के माध्यम से भूगर्भ के चित्र लिए गए, तो ध्यान में आया कि आज उन्हीं प्रवाह मार्गों पर ये अंतःसलीला होकर के निरंतर प्रवाहित भी हो रही है। So this is the lithological cross section. This is Peepli, and here you see this very thick blue colored sand. This blue is sand. So very thick sand deposit, which is indicative of the presence of a river system that used to pass through this point. कुछ तीर्थ है जो शोसर जंगल है पेवा के नज़दीक, उसमें है सरस्वती नदी किनारे पर ही सारे स्थित है तीर्थ। अधिकांश तीर्थों पर तो घाट आज भी विद्यमान है। लगभग लेट मेडिवल पीरियड के 17वीं 18वीं शताब्दी के घाट मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं सिद्ध करते हैं कि इस क्षेत्र में, इस नदी के जहाँ घाट बने हैं, कभी स्नान की परंपरा रही होगी, नदी का बहाव रहा होगा, नहाने के लायक वहाँ जल विद्यमान होगा। Although the river system disappeared, Saraswati continues to live on as the source of life, who empowered us to think beyond survival, who gave us the power of words and wisdom. Saraswati lives in our memory and in worship. जहाँ एक और लोगों ने सरस्वती नदी के महत्व को श्रद्धा और संस्कृति के माध्यम से जीवित रखा, वहीं उसके ऐतिहासिक कालक्रम का समुचित दस्तावेजीकरण नहीं हो सका। यही कारण है कि आज उसे केवल एक पौराणिक नदी माना जाता है। विडंबना ये है कि जिस नदी ने हमें वाक और विवेक का वरदान दिया, उसके अस्तित्व को आज नकार दिया गया है, केवल इसलिए कि आज हम अपने वाक और विवेक से उसकी ऐतिहासिक उपस्थिति सिद्ध नहीं कर पाते। हरियाणा सरकार ने 2015 में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, जिसका उद्देश्य था कि सरस्वती को पुनर्जीवित किया जाए और सरस्वती के किनारे जो पुरातात्विक महत्व के जो स्थल हैं उनको डेवलप किया जाए, उनका लोगों को महत्व बताया जाए। थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए भी अगर हम इसको जीवित कर सकते हैं, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। माँ सरस्वती मौन है पर जीवित है। टीवी में, दूरदर्शन पर अनेक स्थानों पर देखा होगा कि यमुनानगर जिले में एक स्थान था और उसमें थोड़ी सी 3-4 फीट की खुदाई की गई तो उसमें जल निकला बड़ा स्वच्छ। ये उस स्थान के उत्खनन के दृश्य हैं। थोड़ा और आगे चलें तो आदिबद्री में, जहाँ सरस्वती और सोम नदी के 2 नदियों का संगम माना जाता है, उसके पास जो उत्खनन कार्य हुआ, प्राचीन काल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुआ है। The search for Saraswati requires intensive and extensive research and documentation, but more importantly, reflection. Our memory of Saraswati was stolen by the tide of time. Our records controlled by foreign rulers. And the existence of Ma Saraswati is now divided into metaphor and misbelief. To find Ma Saraswati, we must go back to her teachings. Na choraharyat, na rajaharyat, na bhratri bhajyat, na cha bharakari. Vyaye krite vardhate vanityam, vidyadhanam sarvadhanam pradhanam. Knowledge cannot be stolen, controlled or divided. The truth about Saraswati lies in the treasure of knowledge. Ma Saraswati is not lost.
she continues to flow within all of us in her eternal river of knowledge.